Hello, friends. Beautiful evening, and welcome to Fitness Talks with Anand. This is season 3, episode 4, and today we are going to be talking about another topic on fitness with our very own Sangram Chaugule. So, friends, I hope you all have read today's topic, and as we are into conversations, if you have any queries or any doubts, please feel free to write in the comments or message us later, and we will get back to you. Today also we'll also try to answer it right away with the help of, if time permits, through Sangram. So do write your questions here in the comments, and we will definitely try and answer them. Also, now this fitness talk is on the platform of ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences, and this is in association with UHFF, that is United Health and Fitness Federation. It is the one and only registered fitness federation in India and the first one to be registered. We all are waiting for the gyms to open up soon in Maharashtra. UHFF and we all together have been talking to the Maharashtra government. We have sent across a lot of request letters along with the SOPs so that they can allow us to open the gyms. We are hoping for some good news in the coming days, but no confirmation on anything yet. But as soon as we have any information, we'll definitely share it with you. So in the meanwhile, till Sangram comes in, okay, it's Dream Boy Comedy. Today's topic that we are covering is the 7 elements of rest and recovery. Now, rest and recovery, these are two different things. They are not the same. They do not mean the same. And once Sangram is online, we will discuss on that. Also, we would like to know from Sangram as to what are the points, what are his experiences with each of these 7 elements of rest and recovery. And let's see what he does. So, hey Hazare, hi, how are you? Ahad, hello. Hey Rohit. Rutuja, hello, how are you doing? Hi Suraj. Cool. Hey Aditya, good to have you online. Alright, let's wait for Sangram to come in. So also there's an interesting thing that we have started at ISFS. We have recently launched something about, it's a scholarship program for the kids. So as we know that in today's fitness industry, a lot of people are already working in this industry but are not certified. So to make sure that they get an opportunity, yes, we have first started distance education program. So anybody in India from anywhere can get certified into fitness, and they can learn how to become trainers and what is the right way to train, what are the right things to take into place when you are training somebody, how to deliver results, also how to create business opportunities and how to be successful in this industry. So it's a wonderful platform where you can learn online, as well as very soon from January 2021 we are launching classroom programs for personal training and also for nutrition. So if you have any queries or any doubts, you can definitely message us, call us, or go to our website www.theisfs.com. So I'll spell it out. It is www.theisfs.com. You'll get all the details here, also about the scholarship programs that we have started. So there are wonderful, somewhere around 30% scholarship comes into place, where there are a lot of funds which companies want to spend on educating people. So they share those funds with us and we help our kids with them. So there are scholarship programs also that you can take advantage of in the current pandemic.
Also, due to pandemic, we are having a special discounted price and fees for all our students, which will very soon be increased from January to 2020, probably from December. Depends on when government allows us to open up. So take advantage and get to learn more. In fact, even if you're not a trainer and you just want to learn about fitness, you want to know the right exercise techniques, you want to know how your body anatomy and physiology is, how does exercise help, you want to know the science behind fitness, you are also most welcome to get this course done. Once you are, that can help you also personally. Hey Prathamesh, hello Prince, hey Bapi, hey Aku, hi Kishu, welcome guys. We are just waiting for Sangram to come online. Okay. Meanwhile, if you have any questions, please feel free to shoot. So before Sangram comes in, I will share these 7 elements with you, and these are the 7 elements for rest and recovery. The first one is sleep, definitely. And firstly, let's talk about rest and recovery. These are 2 different things. So rest is something where, say, you are giving your body rest and you are not doing anything, you are letting it recover on its own, which definitely is very important. And recovery is something where you are doing activities which will efficiently, it will increase your recovery, reduce the recovery time period. So it actually helps and aids into the recovery. So this is the difference. Rest is just giving time to your body, sleeping, relaxing, and making sure that your body heals. And recovery is the phase, is the recovery basically means the things that we do to make sure that our recovery of the body goes faster, the rest and recovery, and we again get back to the fitness routine. It definitely plays a very important role, and we generally miss out on these things. As we know, it's a tripod. It's exercise, nutrition, and rest and recovery. Okay. Sangram seems to be stuck somewhere. He'll join us very soon. Okay, so till then, what we will see is what are these 7 elements, right? The seven elements of rest and recovery. The first one, as we know, is definitely sleep. The second one is hydration. Hydration is very, very important. So how much water you drink. Third one is nutrition. Fourth is posture. So posture while sleeping, while sitting, while standing. So posture plays a major role. Stretching, yes, very important for recovery. Self myofascial release, so it's basically something like you can do a myofascial release with a foam roller or massage or something. And the 7th one, but not the last one, is heat, ice, and compression. So these are the 7 elements that we will be talking about, and we'll see how is Sangram, what is Sangram's experience with these 7 elements, and what does he do. So we'll wait for him to come online. So Mayur is here, and Mayur is asking, please suggest any protein. Hey Mayur, so firstly, I know this is a very common question, Mayur, and I would really like to help you out. So protein is something, it's not something that I can just say that Mayur, you go for this. To suggest you a protein, I need to first understand what is your current health situation. So are you exercising? Then, so there are a lot of things that we need to discuss before I suggest any protein to you.
and then we can go ahead. I am definitely thinking about doing a episode on supplements and protein and all this with some people in this industry who have been in this for a very long time. But as of now, to suggest you anything, I need to really understand what is your current fitness, what are you, any medical conditions, what is the nutrition intake that you are having at present, and only then I can tell you the right suggestion. So it's very difficult to give you a straight answer here. I hope you understand, and maybe you can message me and we can get in touch later. We have Tanmay Zadav. Hi Tanmay, gyms are open or not? Hey Tanmay, so in Maharashtra the gyms are not yet open. Across India the gyms have opened up and they are functioning well. There are no, in fact we have also seen, there are research by IRSA that in gyms the chances of getting corona is 0.0023%, which is very very less compared to any other place. So we have been as a federation, a fitness federation, that is UHFF, we are a part of that. We have been putting across a SOP to the government, and we have spoken to them and we are requesting them that please open up in Maharashtra also. We are hoping for a response from them very soon. So we'll get back to our topic as we have Sangram with us coming, and really excited to know his side on this very important pillar of fitness, that is rest and recovery. Hello Sangram, welcome to Fitness Talks. Good to see you. Good evening. Good evening. Good evening. So Sangram, आपण असंच तू येईपर्यंत we were talking to our guests. आणि येस, तन्मय जाधव, आय एम द बिगेस्ट फॅन ऑफ संग्राम चौगुले. तर तन्मयशीच बोलत होतो की कधी जिम्स उघडतायत चाललेलं. तर आजचा आपला टॉपिक संग्राम आहे की रेस्ट अँड रिकव्हरी हा फिटनेसचा एक खूप मोठा इट्स अ ट्रायपॉड, की एक्सरसाइज करणं, चांगलं न्यूट्रिशन घेणं आणि रेस्ट आणि रिकव्हरी हे तिन्ही पिलर्स असतील तरच एक चांगली फिटनेस होऊ शकते. तर त्यातला रेस्ट अँड रिकव्हरी वरती आपण आज बोलूया. मी गेस्टना आपल्या तेच म्हणत होतो की रेस्ट आणि रिकव्हरी हे दोन वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. रेस्ट म्हणजे समथिंग वेअर तुम्ही आराम करताय, बॉडीला हील होऊ देताय, जसं झोपणं, स्लीप. आणि रिकव्हरी समथिंग जिथे तुम्ही काहीतरी अशी ऍक्टिव्हिटी करताय ज्याच्यानी रिकव्हरी फास्ट होईल. आपण हिंदीमध्ये बोलूया, एक मेसेज आला मला. रिकवरी विल बेसिकली आपका रिकवरी को हेल्प करता है, दैट इज रिकवरी. तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज जैसे मसाज करते हैं या फोम रोलर से प्रेस करते हैं या आइसिंग और ये सब, ये रिकवरी का पार्ट हो गया. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बट दोनों इम्पोर्टेंट है. तो और उसके 7 एलिमेंट्स है जो व्हील क्विकली मैं शेयर करता हूँ और फिर हम जानना चाहेंगे कि आप इस 7 एलिमेंट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है. तो सबसे पहले फर्स्ट रेस्ट एंड रिकवरी का एलिमेंट है स्लीप. सो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के लिए. तो आपके हिसाब से आप कितना घंटा एक इंसान को सोना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि आनंद, फिटनेस डिपेंड्स अपॉन अ ट्रायंगल. करेक्ट है ना. और दूसरी बात क्या है कि बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इज नॉट बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस. यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जो लोग एक मिसमैच कर रहे हैं या फिर एक ही चीज पे जाने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग पटरियां हैं. डेस्टिनेशन दोनों का एक ही है बट बोथ आर डिफरेंट थिंग. इसका बेसिक फिटनेस, देन बॉडी बिल्डिंग आता है, देन रेस्ट चीज आती है. उसमें एक चीज रहती है कि वर्कआउट, इसमें आप वर्कआउट कर रहे हो. देन आती है आपकी डाइट. और ये बेस्ट पिलर जो रहता है वो रहता है रेस्ट, जो इंडिया में हर जगह भी इग्नोर किया जाता है मोस्टली. क्योंकि सबको क्या लगता है कि एक बार बॉडी बिल्डर है तो उनका काम है खाना और सोना. बिकॉज ऑफ दैट दे आर बिकमिंग बॉडी बिल्डिंग. वो बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, सही बात है. हम लोग रेस्ट लेते हैं इसलिए बॉडी बिल्डर बनते हैं. करेक्ट. तो आपकी बॉडी क्यों नहीं बनती है, एक रीजन उसके पीछे ये भी है कि यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, इनफ रेस्ट. राइट. ठीक है. तो रेस्ट एक अलग बात है और रिकवरी अलग बात है. ये भी लोगों को मालूम नहीं है. लोगों को लगता है कि खा के सोएंगे तो बॉडी बन जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. राइट. तो सिंपल थिंग है कि आप अगर खाते हो और सोते हो तो आप वर्कआउट जो करते हो, वर्कआउट में आपका क्या होता है, मसल ब्रेकडाउन हो जाता है. राइट. तो खाने के बाद सोएंगे, सिर्फ आप सोएंगे
तो एक पार्ट उसका कंप्लीट हो गया, राइट, उनको रेस्ट मिल गया। लेकिन जो वेर एंड टेयर मसल का होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मसल की बाकी चीजें होती है ना, उसके लिए सिर्फ स्लीप इनफ रहती नहीं है। बट स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बेसिक अपना वही है कि खाना खाना चाहिए, काम करना चाहिए और सोना चाहिए। बराबर, और ये सब चीज अच्छे करने के लिए आपका फिट होना चाहिए। यस, क्योंकि जब आप पेशेंट रहते हो आपको नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर आपको नींद क्यों लेने के लिए बोलती है कि आपको रिकवरी होनी चाहिए। दिस इज वन पार्ट ऑफ रिकवरी, कि आपको अगर हेल्दी होना है तो आपको स्लीप इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बॉडी अपनी इस तरीके से बनी है कि आप अगर सोते हो, बॉडी को स्टेबल रखते हो, तो बॉडी अपना काम अपने आप स्टार्ट कर देती है। अगर आप अंदर से कुछ आपको प्रॉब्लम है तो, करेक्ट करेक्ट, और आपके मसल्स को प्रॉब्लम है तो उसको अगर आप विदाउट मूवमेंट रखते हो, जैसे इमोबाइलेशन बोलते हैं, अगर नेक का आपको प्रॉब्लम हो तो आपको बेल्ट लगा दे, क्योंकि आप स्टेबल रहते नहीं हो, इसलिए आपको लगाना पड़ता है कुछ। तो स्टेबिलिटी मतलब स्लीप, आपकी बॉडी स्टेबल करनी है, आपको एक जगह पे बैठना है या फिर सोना है, दैट इज स्लीप, मतलब आप रेस्ट ले रहे हो। तो मेरा स्लीप का बहुत अलग पार्ट है, क्योंकि मेरा स्लीप बहुत कम होता है, डिपेंड्स रहता है मेरे काम के ऊपर। क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब बिकॉज ऑफ पेंडेमिक में बहुत सारी चीजें सीख चुका हूँ कि रेस्ट कितनी जरूरी है। इसके पहले मैं सिर्फ काम के लिए भाग रहा था, सम गोल से, ड्रीम से, रनिंग बिहाइंड द मनी, देन रनिंग बिहाइंड सो मेनी थिंग। तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक मुझे बहुत सारी रेस्ट मिली है, क्योंकि काम ही नहीं है कुछ, राइट। तो काम नहीं है इसलिए मुझे रेस्ट मिला है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि काम कुछ कम करके रेस्ट ले सकता हूँ, बराबर है, राइट। इसलिए इसके पहले रेस्ट नहीं ले रहा था मैं, बट अभी जो पेंडेमिक चालू है, जो लॉकडाउन चालू, उसके कारण मुझे रेस्ट अच्छी मिल रही है। और तब मुझे पता चल रहा है कि दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं। तो मेरा रेस्ट का अभी भी इतना शेड्यूल फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरे दूसरे भी काम चालू है। क्योंकि मेरा ख्याल ऐसा है कि एक बंदे को अगर घर के 4 लोगों को सोना है अच्छे से, तो एक बंदे को काम करना पड़ता है। सो आई एम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि मेरे अगर 50 फैमिली, 100 फैमिलीज मेरी है, 100 लोगों का मेरा स्टाफ है मेरे साथ, तो उनका अगर कुछ करना है तो मुझे थोड़ा रेस्टलेस होना पड़ेगा। बट ये दिस इज इम्पोर्टेंट कि रेस्ट इज द मस्ट। जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, दैट टाइम पे हमारा फिक्स रहता है कि इतना खाना खाना है, देन आफ्टरनून में रेस्ट लेना है, देन फिर से खाना खाना है, नाइट को रेस्ट करना है। ये प्रॉपर शेड्यूल रहता है। तो ये शेड्यूल बनना अभी फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी पता चलेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज मतलब कितना इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें पता चल गया। सो रेस्ट मेरा अभी नींद का शेड्यूल इतना फिक्स नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू टेक एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि विदाउट दैट मैं बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं दे पाऊंगा, अंदर के पार्ट्स को मेरे। क्योंकि जब तक मैं एक नॉर्मल इंसान जो एक्सरसाइज करता है रेगुलर, उसे 30-40 मिनट या 1 घंटा एक्सरसाइज, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसको कितना सोना चाहिए? देखिए, एवरेज स्लीप आपको 6 घंटे की मिनिमम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटा सोना है, 12 घंटा सोना है। आपको बेड पे लेटना है मतलब सोना नहीं है, मैं अलग बात कर रहा हूँ। आपको साउंड स्लीप चाहिए, आपको स्पीच करने रखने के लिए। अगर आपको मसल्स को रेस्ट करने हैं तो आप बैठ भी सकते हो, या फिर आप बेड पे लेट भी सकते हो। तो दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट स्लीप इज डिफरेंट पार्ट। आपको सोना है मतलब आपको सोना ही है, मतलब यू आर डेड। करेक्ट। जब तक आप उठते हो तो आप डेड रहते हो, तो दैट इज द पोजिशन, उसको आप स्लीप बोलते हो। तो स्लीप एटलीस्ट 5-6 घंटे की तो साउंड स्लीप आपको होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बहुत लोग इतना कंपटीशन में, अपना लाइफ इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है आज के जमाने में, तो बहुत लोग कम सो रहे। और जब से ये सोशल मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट इतना हो गया है, तब से रात को हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स रिमेम्बर कि कम से कम 6 घंटा नींद है, संग्राम सेट। एंड प्रेफरेबली एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 12 बजे से पहले सोना, तो आपके बॉडी को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आज का था, एलिमेंट ऑफ रिकवरी, दैट वाज स्लीप। सेकंड पॉइंट इज हाइड्रेशन। एक बात बोलना चाहूंगा कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं गाइस, ये मेरा चीज मत फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरा सोने का टाइमिंग 12 बजे के पहले है नहीं। अगर आप देखते हैं तो मेरे सोने का प्लान अराउंड 3 से 4 बजे का है। मॉर्निंग में सोता हूँ मैं 4 बजे, और उठने का मेरा प्रोग्राम है तक जब काम रहेगा तब। तो एक चीज है जो आप फॉलो मत कीजिए प्लीज, 12 बजे से पहले सोना चाहिए आपको। और भले आप सूरज के साथ मत उठो, बट एटलीस्ट आप 6-7 बजे तो उठ जाओ, सूरज उठने के बाद तो उठ जाओ। आई थिंक हम जब संग्राम से बात किया कि हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, संग्राम ने बोला यार ये टॉपिक इसमें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए लोगों ने, तो बट ही स्टिल कम ऑनलाइन, और वो राइट चीजें आपको बताएंगे। हर एक का एक रूटीन है। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, उसके पहले संग्राम, ISFS का स्लीवलेस टी शर्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं आप, एंड वेरी हैप्पी टू सी यू उसमें। सो सेकेंड पॉइंट इज हाइड्रेशन,
कि हाइड्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है, पानी पीना कितना इम्पोर्टेंट है, और एक इंसान ने कितना पानी पीना चाहिए दिन में? तो आनंद, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस बट वी आर नॉट सेम। सो आप वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से आपका हर एक का वाटर इंटेक चेंज होता है। मैक्सिमम क्या होता है कि लोग बोलते हैं आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 6 लीटर पानी पीना चाहिए, बहुत सारे लोग 10 लीटर पानी पीते हैं। तो एनीथिंग एक्सेस इज डेंजरस टू योर बॉडी, और किसी भी चीज के लिए कुछ भी आप एक्सेस करते हो तो आपके लिए खराब रहता है। सो पानी का मेरे ख्याल से कैसा है कि मेरा मैक्सिमम इंटेक 2 या 3 लीटर रहता है पानी का हमेशा। उतना रहता है। तो मैं चेक कैसे करता हूँ कि अगर आपका यूरिन आपका व्हाइट है, तो आप हाइड्रेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको आप हाइड्रेट हो, ये आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, या फिर आप कई कुछ चीजें सफर कर रहे हो अंदर से, तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका हो जाता है आपकी यूरिन के ऊपर। तो आपकी यूरिन कितनी डार्क रहेगी, मतलब आप डिहाइड्रेट नहीं हो। आपको हाइड्रेट होना है, आप डिहाइड्रेट हो चुके हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि आप पानी पीते हो तो आप हाइड्रेट हो जाते हो। वी आर, अपना बॉडी पानी से बना है, मतलब अराउंड 70% इज वाटर। हाइड्रेशन मतलब क्या, कि आपके मसल हाइड्रेट होने चाहिए, ना कि आपका पेट और आपकी यूरिन, किडनी। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना आपका फ्लश में निकल जाएगा, फ्लशिंग से। तो हाइड्रेट होने का मतलब क्या है कि आपके मसल्स हाइड्रेट होने चाहिए। यस, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, बट आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो आपके फूड में से आपके मसल में पानी जाना चाहिए। जैसे मैक्सिमम फ्रूट्स, आप फूड में से जितना पानी पियोगे ना, खाओगे ना, उतना आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। जितना पानी इंटेक करोगे, वाटर इंटेक, आपका फ्लश में से निकल जाएगा। तो आपके टॉक्सिन्स निकालने के लिए पानी इंपॉर्टेंट है। आप मेजर नहीं कर सकते हो 5 लीटर 10 लीटर। ये कंसेप्ट था जब हम लोग क्रिएटिन लेते थे, उस टाइम पे कंसेप्ट था कि आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन था कि आपको 10 लीटर पानी पीना है। भले आपका वेट 55 kg हो, आपका वेट 100 kg हो, आपको 10 लीटर पानी पीना है। तो लिटरली हम लोग तो 2-2 लीटर की 4 से 5 बोतल भर के रखते थे जब हम क्रिएटिन लेते थे, तो क्योंकि पानी पीना है, नहीं तो स्टोन हो जाएगा। सो दैट वाज द मिसकंसेप्ट कि क्रिएटिन से स्टोन होता है, पानी नहीं पियेंगे तो स्टोन हो जाएगा, पानी पियेंगे तो स्टोन नहीं होगा। सो पानी आपका इंपॉर्टेंट है। आपको चेक करना इतना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेट है कि डिहाइड्रेट। आपकी बॉडी आपको रिप्लाई देती है। आपके आंखों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कभी कभी वीकनेस आ जाएगा, अभी आपको टायर्डनेस आ जाएगा, आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है तो। सो आपका स्किन ड्राई हो जाएगा। सो पानी का अगर आपको चेक करना है कि डिहाइड्रेट हो कि नहीं, आपको सिंपल चीज है कि यूरिन चेक करो। अगर आपका यूरिन व्हाइट हो रहा है, जितना ज्यादा प्योर व्हाइट, क्रिस्टल व्हाइट है, उतना आपकी बॉडी हाइड्रेट है। और जितना आपका बॉडी हाइड्रेट है, उतना आपका मसल का स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, मसल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, देन आपका न्यूट्रिशन आपके मसल में चला जाएगा, और वो जो प्रोसेस आपकी है, ईट, ट्रेन, स्लीप एंड रिपीट, ये चीजें आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। दैट्स अ परफेक्ट। आपने एक मेजर बताया है कि हर एक के लिए पानी कितना है हम बोल नहीं सकते, बट यूरिन से देखना एक परफेक्ट मेजर है। एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सजेशन मिला है संग्राम से, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। संग्राम, तीसरा टॉपिक, हमारा तीसरा एलिमेंट है जो रेस्ट एंड रिकवरी का, दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको उस पर इतना, बट बेसिक न्यूट्रिशन की चीजें, 1-2 टिप्स जो लोग कर सकें। यस, इसके पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि बॉडी बिल्डर जो है वो बहुत ज्यादा, अभी हम लोग फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डर्स का अलग पार्ट रहता है। बॉडी बिल्डर की हर चीजें अलग रहती है, उनका खाना, उनका पानी पीना, उनका बाकी सब चीजें। तो अगर आप लोग हो कि आप अभी विटामिन की जरूरत है, विटामिन के पार्ट हम इसमें नहीं ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट अगर आप कुछ विटामिन लेते हो तभी आपका यूरिन येलो होता है। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो आपका यूरिन बहुत ज्यादा डार्क येलो होता है। सो आप उस टाइम पे ऐसा मत सोचो कि आप हाइड्रेट हो या डिहाइड्रेट हो। अगर आप 2 या 3 लीटर रेगुलर पानी पी रहे हो, फिर भी आपका यूरिन येलो हो रहा है, मतलब यू आर हाइड्रेटेड हो आप, बट बिकॉज ऑफ सम कैप्सूल, बिकॉज ऑफ सम विटामिन, आपका यूरिन येलो हो रहा है। सो वहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लीजिए। अगर आप कुछ विटामिन नहीं ले रहे हो, कुछ टैबलेट्स नहीं खा रहे हो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आपको टेम्परेचर नहीं है, आप हेल्दी हो, और पानी पीने के बाद कम पानी आपका हो रहा है, तो आपका यूरिन येलो जाएगा। अगर आपका पानी रेगुलर हो जाएगा तो आपका यूरिन व्हाइट हो जाएगा, देन यू आर हाइड्रेटेड। सो ये थोड़ा मिसकंसेप्ट आप निकाल दीजिए मन से, जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहेगा तो। ठीक है। सो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है कि देखिए, हर कोई बंदा क्या कर रहा है आजकल कि बॉडी बिल्डर्स को फॉलो कर रहा है। सो न्यूट्रिशन मतलब बॉडी बिल्डर नहीं है।
मेरे ख्याल से क्या है कि बॉडी बिल्डर को आप अलग ही रखो, ये डिफरेंट स्पीसीज है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स आर नॉट लाइक ह्यूमंस, इनको ह्यूमंस में काउंट करते नहीं है, क्योंकि इंडिया के बॉडी बिल्डर ठीक है और वो भी लगभग अराउंड ह्यूमन दिखते हैं, बट अगर आप कंप्लीट बॉडी बिल्डर प्रो बॉडी बिल्डर देखेंगे ना तो दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट लुक लाइक ह्यूमन, क्योंकि उनकी चीजें ह्यूमन की जैसी है ही नहीं। और अभी फिटनेस मिसगाइड क्यों हो रहा है कि मैक्सिमम लोग फॉलो उनको कर रहे हैं जिनके मसल्स बड़े हैं, इसलिए वो फिट है, इसलिए वो डाइट करके आप कर रहे हो। डाइट का मतलब क्या है कि योर डाइट शुड बी बैलेंस, बैलेंस डाइट मतलब न्यूट्रिशन डाइट आपका एक कंसेप्ट होता है कि आप अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, बॉयल एग खा रहे हो, बॉयल चिकन खा रहे हो, बहुत सारी विटामिन खा रहे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट खा रहे हो, इसका मतलब न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की जरूरत जितनी है उतना बैलेंस फूड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। सो मसल के लिए प्रोटीन जाना चाहिए, एनी हो, आप प्रोटीन सप्लीमेंट खाओ या फिर फूड खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स आप कुछ भी चीज खाओ, कार्ब जाते हैं आपकी बॉडी में, और फैट में कंसेप्ट अलग अलग है सबके, मिसकंसेप्ट होते हैं, तो हेल्दी फैट। सो ये अगर आप बैलेंस करते हो तो दिन में अगर आप 3 बार भी खाना खाते हो तो आपकी एक्टिविटीज जितनी है उसके हिसाब से आपके बॉडी में कैलोरी इंटेक होना चाहिए। और जो फूड आप खा रहे हो, मैं मैक्सिमम लोगों को बॉडी बिल्डिंग का डाइट कभी देता नहीं हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट पार्ट। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा वो काम ही वो है, इसलिए उसके हिसाब से मैं खा रहा हूँ। जैसे एरोप्लेन के लिए भी पेट्रोल लगता है और कार के लिए भी पेट्रोल लगता है। आप कार में, एरोप्लेन में आप कार का पेट्रोल डाल नहीं सकते हो नहीं, और कार में एरोप्लेन का पेट्रोल डाल नहीं सकते हो, हालांकि वो पेट्रोल ही है, करेक्ट है ना। तो अंडे फूड सबका फूड सेम ही है, पर कैसे है कि मैक्सिमम ट्राई टू ईट क्लीन फूड, यानी आप जो चीज खा रहे हो ना, सिंपल बात है, अगर आपको लीन होना है तो आपको क्लीन खाना है। तो व्हाट इज क्लीन? क्लीन मतलब क्या है कि आप जो खा रहे हो ना आपको दिखना चाहिए। जैसे आप अंडे खा रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ लाइक अंडे का क्रश करके पूरा उसका पेस्ट बन के बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको अंडा दिखना चाहिए। आप जो खा रहे हो अगर आपको दिखता है, सो अगर आप चिकन का ये खाते हैं, मतलब चिकन के चॉप्स करके, क्या बोलते हैं उसको, नगेट्स नहीं, चिकन यानी चिकन के पीसेस होते हैं, कौन खाते थे, भेजा फ्राई वगैरह कैसे, हाँ राइट, खीमा। तो आप खीमा खाते हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो चिकन है। करेक्ट, ठीक है, तो आप जो खा रहे हो ना आपको दिखना चाहिए। चिकन है तो आप चिकन दिखना चाहिए उसमें, चिकन खा रहे हो, इसको बोलते हैं क्लीन फूड। तो अगर उसमें मसाला ज्यादा डालते हो, ग्रेवी ज्यादा डालते हो, तो आपको वो जो मेन चीज है वो दिखती नहीं है। करेक्ट, तो आपको दिखना चाहिए तो आप बॉयल एग खाओ या फिर ऑमलेट खाओ, आपको व्हाइट पोर्शन और येलो पोर्शन दिखता है वहां पे अगर आप हाफ फ्राई करते हो। बट इट्स कंप्लीट फूड जो क्लीन है। तो क्लीन फूड खाना मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, कार्ब और फैट। फैट में भी कंसेप्ट है कि कुछ भी खाओ, फ्राई खाओ, ऐसा नहीं है। फैट में आप ऑयल खा सकते हो घर का भी, बट लिमिटेड, जैसे एक बंदे के लिए 2 चम्मच पूरे दिन के लिए ऑयल इज सफिशिएंट। तो ये हेल्दी फूड आप घर का फूड खाते हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं खा रहे हो, ये आप ध्यान में रखो। आपको फिट होना है, आपको लीन होना है, तो आपको क्लीन फूड खाना है। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग है। मैं मैक्सिमम लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बॉडी बिल्डर्स को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। राइट, आप हेल्दी लोगों को फॉलो कीजिए, जो हेल्दी है, जो मतलब जिनका हेल्थ दिखता नहीं है, मसल दिखते नहीं है, बट दे आर फिट। तो फिटनेस दिखने से डिसाइड नहीं कर सकते हो। करेक्ट, ये अच्छी बात है कि जो बंदा दिखता है वो फिट भी है, बट ऐसे बहुत टाइम पे होता है कि जो बंदा दिखने में फिट है वो फिट नहीं है। राइट, इसलिए न्यूट्रिशन का ये पार्ट रहता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्ब और फैट, इसका बैलेंस होना चाहिए फूड। और उसके साथ अगर आप पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी हाइड्रेट हो रही है। तो दिस इज न्यूट्रिशन। बाकी कुछ न्यूट्रिशन मतलब दूसरा कुछ रहता नहीं है। आई थिंक संग्राम, आपने इतने अच्छे और सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया है, और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पॉइंटर है कि आपको जो खा रहे हो वो दिखना चाहिए। इट इज अमेजिंग, और मैं उसको डेफिनेटली याद रखूंगा। एंड आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू फॉर दैट। द नेक्स्ट पॉइंट, ओह यस, cheers brother. The next point that we'll talk about is posture. रेस्ट एंड रिकवरी में पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं बहुत लोग चेयर पे ऐसे बैठे हैं या ऐसे होके बैठते हैं, तो या फिर हम काफी बार देखते हैं लोग खड़े होते हैं तो दोनों पैरों पे नहीं खड़े होते हैं। वैसे पोस्चर के हिसाब, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे?
आपको अगर खुद को रिप्रेजेंट करना है, आपको खुद को प्रेजेंट करना है कहाँ पे, किसी की जगह पे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि आप वहां पे ओपन जाते नहीं हो। राइट। बॉडी बिल्डर्स खुद को प्रेजेंट कैसे करता है? ऑन स्टेज, विदाउट टी शर्ट, क्योंकि मसल्स दिखाने उसको। तो वहां पे फॉर सम टाइम बॉडी बिल्डर्स को एक कंप्लीट पोजीशन में रहना पड़ता है। एक स्टैंडिंग पोज रहता है जो बॉडी बिल्डर उनको पता चलेगा, या फिर फिजिकल एथलीट से उनको पता चलेगा। तो वहां पे उनका पोस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पे उनको एक ही पोज में क्यों रुकाया जाता है? क्योंकि अच्छे दिखते हैं। सो एक इतनी सिंपल बात है कि अगर आपका पोस्चर अच्छा है, आपका बॉडी रहने दो, आपके सिक्स पैक नहीं है, आपकी चेस्ट इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, आपके शोल्डर ज्यादा डेवलप नहीं है, बट शोल्डर्स है। मतलब शोल्डर्स और बाइसेप डिफरेंस दिख रहे हैं, डिफाइन ज्यादा नहीं है बट दिख रहा है कि शोल्डर है, ये बाइसेप्स है, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन है, मतलब डिफरेंस है उसमें। तो इसके ऊपर जब आप कपड़े डालते हो ना, तो वहां पे मेजर करता है आपका पोस्चर। तो ओनली 5% पीपल आर बॉडी बिल्डर्स, रेस्ट 95% पीपल दे आर नॉट बॉडी बिल्डर्स बट दे आर फिट, दे वांट टू बी फिट। तो उनका पोस्चर अगर ठीक है तो उनको ही कपड़े अच्छे दिखेंगे। अगर आप बैठते समय आपकी हैबिट ऐसी है कि आप एक शोल्डर नीचे करके बैठे हो, फिर एक पैर पे रेस्ट करके बैठे हो, इस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टाइम तक रुकेगी ना, तो बॉडी वैसा ही शेप लेगी, उसको पोस्चर बोलते हैं। करेक्ट। तो आपका शेप, आपके बॉडी के अंदर का शेप किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वर्कआउट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन पोस्चर जो आपका जो है ना, वो कपड़े के बाहर से भी दिखना चाहिए। मतलब सलमान खान को आप देख लीजिए, सलमान खान का बॉडी बिल्डर जैसा डिफाइन नहीं है, बट उसका पोस्चर परफेक्ट है, इसलिए उसको जो भी आप कपड़े पहनो अच्छे दिखते हैं। करेक्ट। बॉडी थ्री बैलेंस है उसका ऐसा नहीं कि लेग छोटे हैं, आर्म्स बड़े हैं, चेस्ट बड़ी है, बाइसेप बड़े, ट्राइसेप बड़े। इसका बॉडी शेप में प्रॉपर है, उसका पोस्चर अच्छा है, चेस्ट अप है, लोअर बैक इनसाइड है, और स्कैपुला थोड़े पीछे लेके हुए हैं, तो उसका नेचुरल पोस्चर है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसके लिए आपको सिर्फ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेचेज जो है आफ्टर वर्कआउट, अगर आपको पोस्चर ठीक करना है तो आपको आफ्टर वर्कआउट मैक्सिमम पैसिव स्ट्रेचेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर आपको पोस्चर अच्छा करना है तो। करेक्ट। क्योंकि वर्कआउट के पहले आपको करने हैं खुद के स्ट्रेचेस, डायनामिक स्ट्रेचेस। वर्कआउट के बाद आपको करने हैं पैसिव स्ट्रेचेस, क्योंकि एक लिमिट के ऊपर आप खुद को उतना प्रेस कर नहीं पाते हो पोस्चर ठीक करने के लिए। सो पोस्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉन कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव पीपल है उनके लिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन करते हैं उनका तो पोस्चर दिखता है स्टेज पे। और एक नॉर्मल इंसान आजकल क्या हो गया है कि लैपटॉप पे बैठा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता है। फिर वो फोन के ऊपर बैठा है, तो फोन को पकड़ के रखा हुआ है, तो यहाँ पे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बैक का प्रॉब्लम हो जाता है। एक ही पैर पे खड़े रहता है और फिर एक कमर दुख रही है, एक ही साइड दुख रहा है। ये भी काफी पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और आपका पोस्चर आपका मैनर्स भी दिखाता है। अगर आप पोस्चर के ऊपर ध्यान रखते हो ना, तो किसी के सामने अगर बैठते हो ना, तो आपकी आदत रहती है कि एक साइड पे बैठो, एक पैर ऊपर लेके बैठो। तो आप किधर मीटिंग में जाते हो या फिर किसी फंक्शन में जाते हो ना, तभी आप वैसी उसी की तरह से बैठोगे, क्योंकि आपकी आदत बन गई हो। बराबर। तो अगर आपका पोस्चर अच्छा है ना, तो आपके मैनर्स की चीज भी एक बढ़ जाती है, जो आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है आपको। तो पोस्चर अच्छा होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि कंपटीशन करते हो पोस्चर ठीक रहते हैं। परफेक्ट। और ये पोस्चर हमें रेस्ट एंड रिकवरी में भी हेल्प करता है। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। ये हमारा चौथा पॉइंट, कि अच्छा पोस्चर में खड़े रहने से, बैठने से, अच्छे पोस्चर में सोने से आपका रेस्ट एंड रिकवरी ज्यादा अच्छे से हो सकता है, फास्ट हो सकता है। क्योंकि कह रहे हैं कि देखो, आप सोते हो ना, तो आपके मसल्स को रेस्ट मिलती है, बराबर। लेकिन आपका टेंडेंस है, आपके फेलेंजेस है, मतलब आपकी जो अंदर के पार्ट है, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट्स है, तो इन चीजों का, लिगामेंट्स है, इन चीजों का अगर आपको रिकवरी करना है तो आपको पोस्चर के हिसाब से स्ट्रेचेस देने पड़ेंगे, या फिर और को बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जो स्लिप के कारण आपको मसल को रेस्ट मिलती है, बट ये अंदर के पार्ट जो रहते हैं ना, इनको आपको एक करने के लिए आपको पोस्चर मैटर करता है, और पोस्चर ठीक करने के लिए आपको स्ट्रेचेस मैटर करती है। एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा कवर कर लिया, दैट इज पॉइंट नंबर 5, विच इज स्ट्रेचिंग। कि स्ट्रेचिंग कितना इंपॉर्टेंट है रेस्ट एंड रिकवरी के लिए। तो पोस्चर, स्ट्रेचिंग, हमने ये पॉइंट कवर किया। जैसे संग्राम ने बताया कि बिफोर एक्सरसाइज डायनामिक स्ट्रेचिंग, आफ्टर एक्सरसाइज स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेस्ट एंड रिकवरी को बढ़ाता है। आपका जो टाइम है उसको, टाइम को कम करता है और फास्ट रिकवरी होता है।
संग्राम 6th पॉइंट पे जाते हैं। 6th पॉइंट इज सेल्फ मायोफेशियल रिलीज। तो हम देखते हैं आजकल वो फोम रोलर यूज किया जाता है, या फिर काफी लोग मसाज लेते हैं, तो वो भी रेस्ट एंड रिकवरी में हेल्प करता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? कैसा है कि आनंद, देख के करने से कुछ फायदा नहीं है। तो क्या होता है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि इसका हर एक का टेक्निक रहता है, और हर चीज के लिए हर कोई बंदे अलग अलग रहते हैं, टेक्नीशियंस रहते हैं उसके। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टेक्नीशियन रहते हैं ना, आपकी बॉडी के लिए भी टेक्नीशियंस रहती है। क्योंकि आपके मसल्स के लिए, मसल फाइबर के लिए मसाज देने के लिए अलग लोग रहते हैं। देन आपके जो जैसे बोला कि पोस्चर के लिए, तो ये सुपरफिशियल जो चीजें रहती है ना, अंदर की चीजें, इसके लिए टाइप के पीपल रहते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपका निडलिंग आ गया उसमें, देन उसमें आपके कप थेरेपी आ गई, देन उसमें आपके आ गए रोलिंग का आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा लोग बॉल से भी स्ट्रेचेस करते हैं। एक जगह पे टेनिस बॉल रख के उसको आप खुद कर सकते हो, लेकिन क्या है कि देख के मत करो। एटलीस्ट 1 या 2 बार आप प्रोफेशनल के साथ वो सीख लो। राइट। तो क्या हो जाता है कि आप करने जाओगे एक और हो जाएगा एक। फोम का एक्सरसाइज सबसे आसान है, और ये जो फोम का चला ना कि आप रोल कर सकते हो फोम के ऊपर, तो ये आनंद बहुत सालों के पहले से आ रहा है। अगर आप आपकी दादी माँ रहेगी तो जैसे गांव में ये सब चीजें चलती है। अगर आपका नेक पेन होता है ना, तो आपको ये क्या बोलते हैं जो अनाज बेलन का रहता है, यहाँ पर मराठी में मापटा बोलते हैं उसको, जो डमरू के जैसा रहता है ना, वो नेक के नीचे रखने के लिए बोलते थे हमारे दादी और दादाजी, कि अगर आपका नेक अकड़ गया ना तो उसको एक शेप रहता है डमरू के जैसा। करेक्ट। उसके ऊपर अगर नेक रखते हो तो अपने आप नेक आपकी ठीक हो जाती है। उतने सालों से सबको मालूम है ये चीजें, जो अभी फिर से आ रही है। अभी उसको फिजियोथेरेपी पिलो बना के बेचा जाता है। तो अभी वो फोम आ रहा है, फोम में अपने अलग अलग शेप्स दे के रखे हैं। तो क्या है कि वो पुरानी चीजें है ना, वो कुछ डेवलप करके अभी नहीं आ रही है। बट ये सब चीजें पहले वाले लोग जानते थे, इसलिए वो लोग ज्यादा फिट है हमसे, क्योंकि उनको हर चीज के रेमेडी मालूम है। अगर आप गांव में जाते हो ना, तो वहां का लाइफस्टाइल आप देखिए, उनका खाना देखिए, वो क्लीन फूड खाते हैं हमेशा। वो प्याज काट के नहीं खाएंगे, वो पोड़ के खाएंगे। करेक्ट। वो खाते समय वेजिटेबल ग्रीन वैसे ही खाएंगे, जैसे आप हमें उसको सैलड बोलते हैं। तो है ना, तो क्या है कि अगर आपको लाइफस्टाइल जीने है ना, तो आप सिटी में चले जाओ, लेकिन आपको लाइफ एंजॉय करनी है, फिट लाइफ, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि हमारे दादाजी 100 साल कैसे जिए, विदाउट एनी इंजरीज और विदाउट एनी कुछ भी बिना हुए। तो उनका खाना क्या था, वो उनका लाइफस्टाइल क्या था, तो उनका जीने का तरीका क्या था। इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइफ जीना। तो सब चीजें क्या हो रही है, लाइफस्टाइल जीने के कारण ये लाइफ खराब होती जा रही है। इतना सिंपल है सब चीज। दैट्स द थिंग, जो होम का चल रहा है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। विदाउट इंजरी अगर आप उसके ऊपर खेल भी जाओगे ना, उससे खेलोगे भी, तभी आपकी बॉडी बहुत जगह जगह से फ्री हो जाएगी। वंडरफुल। और क्या अमेजिंग कनेक्शन है संग्राम। आज का एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड बनते जा रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और लास्ट पॉइंट है जो 7th एलिमेंट ऑफ फिटनेस है, वो है हीट, या फिर आइस, या फिर कॉम्प्रेशन। तो हम देखते हैं जैसे ये भी रेस्ट एंड रिकवरी में हेल्प करता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसके बारे में? देखिए, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हम लोग करते रहते हैं हमेशा। जब स्वेलिंग आपको आता है ना, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स कनेक्ट हो जाएंगे। जब स्वेलिंग होता है तो आइस पैक लगाते हैं हर जगह पे। देन अगर कहाँ पे आपको मोच आ जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे आप हल्दी लगाते हो, या फिर आप बड़ा सॉल्ट मिक्स करते हैं, उसको वहाँ पे शेक गर्म करते हो। तो ये चीज भी मैटर करती है कि आपको कौन सी इंजरी है, आपको वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट देना है कि कोल्ड ट्रीटमेंट देना है। राइट। तो जो लोग विदाउट नॉलेज सिर्फ देख के करते हैं ना कि भाई उस बॉडी बिल्डर ने आइस ट्रीटमेंट दी थी, लेकिन आपको इंजरी हो गई अलग चीज, जहां पे आपको हीट ट्रीटमेंट देनी है, वहां पे अगर आप आइसिंग करोगे तो आपका मसल ज्यादा इंजर हो जाएगा। बराबर है। तो ब्लाइंडली किसी को देखना नहीं है कि उसने नीडल थेरेपी की तो मुझे भी करनी है, नहीं, आपको देखना है कि आपको सच में जरूरत उसकी है कि नहीं, या फिर उसने कब थेरेपी की मुझे भी करना है, क्योंकि उसने वीडियो डाला, उसकी वीडियोस को इतने सारे लाइक्स आ गए। तो एक बॉडी बिल्डर ने अगर कब थेरेपी किया ना, तो अराउंड 50 बॉडी बिल्डर सेम वो भी वीडियो करके डालेंगे। सो यू डोंट डू इट टू शो अप। आप जितना रियलिस्टिक रहोगे ना, आप जितना ट्रू रहोगे खुद के साथ, जितना आप जोक कर रहे हो ना, खुद बताओगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो उसमें आपको सच बताने के लिए सोचने की जरूरत रहती नहीं है, प्लान करने की जरूरत रहती नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो चीजें मैं करता था, अगर मेरे गर्दन पेन करती तो मैं उसके ऊपर सोता था,
राइट, करेक्ट। ठीक है, तो मुझे अगर मूर्छा Yeah. आती है, अभी भी मुझे परसों 3 दिन पहले मेरा पैर मूर्छा गया था, तो मेरे मम्मी ने वो हल्दी लगाया, उसको सॉल्ट लगाया, बराबर। थोड़ा उसको गर्म शेक दिया, और उसमें बराबर। रक्त जनन की जो ये मिलती है वो लगाते थे पहले, हाँ, अगर हाँ। आपको मूर्छा आती है तो हर Yes. चीज के लिए अलग अलग चीजें रहती है। नहीं तो फिर आइस थेरेपी, हीट ट्रीटमेंट, ये चीजें क्यों आती थी कंपटीशन की? बराबर। अगर फुटबॉल प्लेयर्स है, वो फुटबॉल खेलने के बाद मैं मैनचेस्टर गया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में, राइट। तो वहां पे आइस बात थी, ओके। आइस बात लेते हैं। अभी इंडिया में आ रहा है वो सब चीजें, क्योंकि इंडिया में ये चीजें नहीं थी पहले, बहुत पहले थी। नहीं। बीच का पीरियड था जो लाइफस्टाइल में चला गया, उसमें नहीं थी, अभी फिर से आ रही है, क्योंकि अभी लोगों को लाइफ जीनी है, लाइफस्टाइल नहीं जी रहा कोई, लाइफ जीने सबको। तो बीच का जो पार्ट था, मतलब अपने पापा का पार्ट, वहां पे Yes, लोग लाइफस्टाइल yes. के पीछे थे, और अपना अब तक का पार्ट यहाँ Yes. से आगे हम लोग। मैं तो लाइफस्टाइल के लिए नहीं जीने वाला हूँ अभी, मैंने Right. खुद को थोड़ा रोक लिया है कि अभी लाइफ जीना चाहिए करके। तो अभी Correct. क्या हो रहा है कि बाहर की कुछ चीजें ना इंडिया में आ रही है, जैसे Yes. अभी आइस शॉवर आ रहा है। हाँ, चिल शावर। देन आप करेक्ट। फुटबॉल प्लेयर क्या करते हैं कि खेलते समय उनके मसल्स थोड़े ब्रेकडाउन हो जाते हैं, देन उनके छोटे छोटे जो इंजरीज होते हैं ना उनको, तो आइस से वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाती है, इसलिए इमीडिएट आफ्टर प्रैक्टिस वो जाके आइस बांट लेते हैं। बराबर है। तो करेक्ट। हर प्लेयर के लिए एक अलग अलग था। मैं जब क्लब में गया था ना वहां पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड यूके में गया था मैं, तो वहां हाँ। पे हर एक का एक बात था, बाथटब जैसा था। वाह। तो हमने पूछा तो बोले कि ये हर प्लेयर का अलग है, अगर वो ये करके आता है प्रैक्टिस करके या फिर मैच करने के बाद, वो यहाँ पे उनका आइस बांट लेते हैं। तो पूरा पानी की जगह आइस रहता है पूरा, और उसमें सोते हैं, तो आपके Wow. मसल्स की रिकवरी जल्दी हो जाती है। सो Correct. एडवांस थेरेपीज है। एडवांस किसको बोलते हैं ना, आपकी आप बहुत पहले की बातें भी आप फिर से आ रही है, जैसे विंटेज चीजें है, विंटेज Yes. कार का भी प्राइस ज्यादा है न्यू कार से, प्राइस है। हाँ, हाँ, डेफिनेटली। ज्यादा है, क्योंकि Yes. उनको मालूम है लोगों को अभी की पुरानी चीजों की वैल्यू कितनी है। तो ओल्ड इज गोल्ड क्यों बोलते हैं? वो हर चीज है ना, हर चीज जो बात की करते हैं ना, फ्रेजेस जो बोलते हैं, तो ऑल दोज आर फॉर अ रीजन, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो पहले के लोग जो बोलते थे ना कि आपको प्याज खेती में फोड़ के खाना चाहिए, काट के मत खाओ उसको, एप्पल काट के मत खाओ, कौन सा भी फ्रूट Right. काट के मत खाओ, कंप्लीट फ्रूट खाओ। तो Correct. कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल आ गई बीच में, वहां पे सब प्रॉब्लम हो गया। बट जो अभी का आपने जो बोला कि आइस ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट है, ये चीजें Yes. पहले से चालू है। बस हम Yes. लोग हमेशा क्या होता है कि घर के पास भूल की गए। चीजों को वैल्यू रहती नहीं है, हाँ, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है। बराबर है। तो आयुर्वेद अभी भी उतना ही स्ट्रांग है, बट लोगों को जल्दी Yes. रिजल्ट चाहिए, इसलिए लोग एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, वेरी ट्रू, वेरी है ना। जो चीज आपको जल्दी मिलेगी वो जल्दी निकल भी जाएगी। ट्रू। तो फिटनेस में आपको लॉन्ग टर्म करना है, तो आपको रोज करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए, ताकि Yes. आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म रहेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। उससे में आइस थेरेपी, हीट थेरेपी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये Yes. सब चीजें, और इससे Yes. मुझे रिलीफ मिला है, तभी मैं ये बोल सकता हूँ इतना, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ बोल रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि मैंने करेक्ट। किया हुआ है, नीडल थेरेपी मैंने की हुई है। जब मुझे इंजरी हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो अंदर मुझे इंजरी हो गई थी, तो वहां पे मुझे फ्री करने के लिए ड्राई नीडलिंग करना पड़ता था। निकलते रहो। करेक्ट। टच मेरा मसल इमीडिएट, मतलब 10-15 मिनट में फ्री होता था। ओके, ओके। बट ये है कि देख के नहीं करना चाहिए। आजकल क्या रहा है कि कौन सा भी मसाजर क्या करता है, मैस्योर जो रहते हैं वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और किट लेके आते हैं, मतलब वो कप थेरेपी का, और फिर जहां पे उनको लगता है ना वहां पे कप लगाएंगे, वैक्यूम करेंगे, और यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद वो वेट थेरेपी भी करते हैं, मतलब कट्स भी करते हैं उसमें। करेक्ट। तो आप ड्राई कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, इतना आपको मेजर कुछ होगा नहीं, बट जहाँ पे आप कट लगा रहे हो ना, ब्लड निकलेगा उधर से, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उनके हाथ में आपकी लाइफ आप मत हार्मफुल हो जाएगा। ये सब चीजें करनी है। तो ये अगर स्पेशल चीजें हैं तो यू हैव टू फाइंड फॉर अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इससे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे यस, यस। इन चीजों के लिए। एंड सच अ वंडरफुल थिंग। सो गाइज, टू समराइज, आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स मिले हैं, और जो संग्राम ने खुद अप्लाई किया है, उसका खुद का एक्सपीरियंस इतने सालों का है, वो हमें जानने को मिला है। कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता थी जो आज संग्राम ने बताई है, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे यूरिन का कलर देख के पानी का देखो, फूड जो है वो पूरा खाओ, होल फूड खाओ। टेक्नीशियन होता है, तो जो एक्सपर्ट है उसके पास से आप लोग खुद मत ट्राई करो। ये काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। पोस्चर, स्ट्रेचिंग, नींद। So I'll once again repeat, the 7 factors are sleep, hydration, nutrition, posture, stretching,
self myofascial release and also heat, ice and compression. तो इन सातों चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका रेस्ट एंड रिकवरी सबसे अच्छा होगा, फास्ट होगा और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे. संग्राम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला. एंड विल मीट अगेन नेक्स्ट फ्राइडे एंड एक नए टॉपिक पे बात करेंगे. और आप इस टी शर्ट में बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, सी यू, टेक केयर. All right, friends. So that was Sangram Chaugule talking on the 7 elements of rest and recovery. We are honored to have him, and बहुत ही अच्छी चीजें सीखने मिली है. So do implement them, and we are once again on the Fitness Talks with Anand show on the platform of ISFS. That is ISST School of Fitness Sciences, in association with UHFF, that is United Health and Fitness Federation, the first registered federation of fitness in India. If you have any doubts, we do a lot of courses. हमारे बहुत सारे courses है fitness पे, personal training, nutrition, special population, a lot of other things we are launching very soon. तो आपको जो भी details चाहिए आपको हमारे website पे मिलेंगे. That is www.theisfs.com, and you will get all these details over there. We are honored, Sangram. Thank you for coming on the show. And guys, I'll see you next Friday, 5 p.m. on a new topic. If you have any suggestions, do message us. Have a wonderful evening and take good care of yourselves. Stay healthy, stay fit, and remember the tripod: exercise, nutrition, and rest and recovery. Take care.